Hello everyone. So in this video we are going to start discussing the CS2, the first chapter, the very important chapter for your board exam, and the name of the chapter is Introduction and Organization to Microprocessor 8085. So this is completely a theoretical chapter and a very important chapter which can give you a 22 to 23 marks in your board exam. And here there is no any programming, here there is no any assembly language coding, so nothing, only the theory, the concepts, and there are some questions which are compulsory asked in your board exam. So whatever we are going to discuss today, so this is just a part 1 video, so more one video will be like posted on this chapter, this chapter 1, that will be part 2. So whatever concepts we are discussing in part 1 and part 2, all the concepts are very important and these questions will be only asked in your board exams. Okay, so keep it simple, very easy, but simultaneously it is also very important to write it down. Okay, so in this chapter there are many block diagrams, there are many pin diagrams, right? There is many theoretical concepts. It is very important to note all these things. So only listening to video is not important, simultaneously writing the points in your notebook is also too important, and I hope so everybody will follow these points. Okay, so let's start discussing the CS2, the first chapter, Introduction and Organization to Microprocessor 8085 part 1. Okay, so before starting the video we will just discuss the paper pattern. Paper pattern you people already know, but the marks distribution and the weightage is also too important, right? पहले weightage को समझ लेते फिर हम लोग अपना chapter को start कर लेंगे, ठीक है? So see this chapter 1 from the CS2 in your board exam can give you how many marks? Can give you exactly 21 marks, right? 21 marks के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे. एक्चुअली वैसा देखा गया तो आपका पूरा CS2 होता है 94 मार्क्स का विथ ऑप्शन, बट हम सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है? और में होता है, राइट? हमें कुछ ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है, 50 मार्क्स का ही हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है. अगर आप विथ ऑप्शंस अगर मार्क्स को काउंट करोगे इट गोज टू 94, बट यू हैव टू अटेम्प्ट 50 में से, अच्छा 94 का तो छोड़ दो, बट 50 में से कितने मार्क्स आपको ये चैप्टर देगा? 50 में से आपको कंपलसरी ये चैप्टर 21 मार्क्स दे सकता है. 21 मार्क्स कैसे देगा? सी माय डियर फ्रेंड्स, 1 MCQ इज कंपलसरी आस्क्ड, 1 MCQ 1 मार्क, 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, सो 4 3s आर यू विल गेट 12 मार्क्स, ठीक है? 4 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क के. एंड हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस पता है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस वो क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है. 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रॉम 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 4 मार्क्स, सो 4 2s are here you get the 8 marks. Again we know these 2 questions very well. Yes, we know the questions, what is the question and what will be the question. We know the question, only the thing is your preparation is going to matter a lot. Okay, so we can easily score 21 marks. If you see CS2, अगर आप ऐसे CS2 में देखोगे तो चैप्टर 1 आपको इजीली 21 मार्क्स दे देगा, चैप्टर 2 आपको 23 मार्क्स स्कोरिंग के लिए दे देगा, चैप्टर 3 कैन गिव यू द 4 मार्क्स. ओनली 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर, ओनली 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स. हियर देयर इज 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, एंड चैप्टर 5 कैन गिव यू 14 मार्क्स, राइट? अभी आप ये देखोगे कि यहाँ पे 43 मार्क्स का तो क्वेश्चन आ रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ 23 क्यों लिखा है? अरे 43 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट आप 23 मार्क्स के अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? आप 23 मार्क्स के अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी क्वेश्चंस और में रहेगा. जैसे कि आपका लास्ट क्वेश्चन दैट इज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग देयर आर क्वेश्चंस जहाँ पे से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. 5 2s are 10, 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5 2s are 10, सिर्फ वहाँ पे 10 मार्क्स मिलेगा आपको. क्लियर एवरीबडी? सो बाकी का क्वेश्चन तो वैसे ही और में रहने वाला है, उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है? सो फ्रॉम सेकंड चैप्टर यू कैन अटेम्प्ट ओनली 23 मार्क्स. 23 मार्क्स के ऊपर आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं तो फिर वो एक्स्ट्रा काउंट किया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में. हाँ, अभी सम स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट 23 के ऊपर भी कुछ अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है? बट अगर ALP में आप ऐसे करोगे, लाइक 2 ही कोड आपको लिखना है, बट किसी स्टूडेंट ने 3 कोड लिख दिया तो क्या होगा? एक्स्ट्रा करके मार्क्स कंसिडर किया जाएगा, दैट विल नॉट बी एडेड इन योर ओवरऑल मार्क्स. So it is very important to understand the paper pattern, right? The marks distribution, paper pattern you people already know. This is the marks distribution for the CS2. Okay, so plus please note it down as we are going to discuss the first chapter. पहला ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके CS2 के नोटबुक में ये कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है. ओके, चलो. So after this we go to the next slide, and exactly now we are going to start discussing the chapter. And what is the name of the chapter? Introduction and Organization to Microprocessor 8085. अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? चलो, सो व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, इसके ऊपर हम लोग एक 2 मिनट के बाद डिस्कशन करेंगे.
बट सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का एवोल्यूशन कैसे हुआ वो समझना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज इसके ऊपर भी एग्जाम में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन डिटेल। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, ये इसकी शुरुआत इंटेल कंपनी ने की थी, ठीक है। किसने की थी? सबसे पहले इसकी शुरुआत जो की थी दैट वाज डन बाय द इंटेल कंपनी, ठीक है। इंटेल का सबसे पहला मॉडल था 4004 इन द ईयर 1971। 1971 में सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने लाया 4004, ठीक है। अब वो माइक्रो प्रोसेसर इतना बेसिक माइक्रो प्रोसेसर था कि उसमें हम सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते थे। वो माइक्रो प्रोसेसर को यूज करके हम सिर्फ कैलकुलेशन जैसे काम कर सकते थे, बाकी जनरल कंप्यूटिंग काम कुछ नहीं कर सकते। बट आज के डेट पे हम जो माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं ना, उसमें क्या कुछ नहीं कर सकते। वी कैन लिटरली डू ऑल द थिंग्स, वी कैन लिटरली डू ऑल द एक्टिविटीज वॉट एवर वी वॉन्ट, वी कैन परफॉर्म लाइक ऑल द एग्जीक्यूशन वॉट एवर वी वॉन्ट एज पर आवर नीड्स। बट सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था वो बस एक सिंपल कैलकुलेशन करने में आपको हेल्प करेगा, एडवांस भी कैलकुलेशन नहीं करेगा, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा। बेसिकली ये माइक्रो प्रोसेसर का जो हिस्ट्री है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो प्रोसेसर का एवोल्यूशन हुआ 5 जनरेशन में। वी पीपल आर लिविंग इन द 5th जनरेशन। विच जनरेशन? 5th जनरेशन। सो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था, फिफ्थ में क्या था, हर एक जनरेशन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। सो माइक्रो प्रोसेसर की कहानी कब शुरू हुई थी? इन द ईयर 1971। सो माइक्रो प्रोसेसर स्टार्टेड, मतलब माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था इन द ईयर 1971। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन। टोटल वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5 जनरेशंस। वी आर एग्जैक्टली लिविंग नाउ इन द 5th जनरेशन। हम लोग अभी 5th जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं। सो फर्स्ट जनरेशन में क्या था? द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट वाज इंटेल 4004। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो मार्केट में आया था वो क्या था? इंटेल का 4004, जो कि एक 4 बिट पीमॉस माइक्रो प्रोसेसर था। Now what is 4 बिट? कोई भी माइक्रो प्रोसेसर को हम बोलते हैं 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली इसका मतलब ये होता है 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर मतलब वो माइक्रो प्रोसेसर के पास 4 डेटा लाइंस होंगे। अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर को अगर हम बोले कि 16 बिट या 8 बिट, अगर मैंने बोला दिस माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ 8 बिट, जैसे कि अपना इंटेल 8085, इफ आई से इंटेल 8085 इज अ 8 बिट, इसका मतलब ये होता है उस माइक्रो प्रोसेसर के पास होता है 8 डेटा लाइंस। अगर मैंने बोला इंटेल 8086 इज ऑफ 16 बिट, इसका मतलब होता है इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर के पास 16 डेटा लाइंस होते हैं। क्लियर? हाँ। सो इंटेल 4004 इज अ 4 बिट पीमॉस माइक्रो प्रोसेसर। पीमॉस का मतलब क्या होता है? पीमॉस इज बेसिकली पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगेन आई रिपीट, पीमॉस का मतलब होता है पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर, एंड इट वाज मेड इन द ईयर 1971। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर था 1971 बाय फेडरिको फैगिन। फेडरिको फैगिन करके कोई थे, ठीक है। उन्होंने 1971 में इंटेल 404 को बनाया, विच इज अ 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। दिस माइक्रो प्रोसेसर वाज इन फैक्ट डिजाइन टू यूज इन कैलकुलेटर। बस कैलकुलेटर में यूज कर सकते थे, इसमें बाकी का कोई हाई एंड काम हम नहीं कर सकते। आज के पे जो इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर ना, इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i6, इंटेल कोर i9, सो उसमें हम एकदम हाई एडवांस काम कर सकते, बट एकदम बेसिक कैलकुलेटर, राइट। हाँ, इट वॉज इनएडिक्वेट फॉर जनरल पर्पज कंप्यूटिंग। हाँ, इसको हम लोग लाइक सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते थे, जनरल पर्पज कंप्यूटिंग के लिए यूज नहीं कर पाते थे, ठीक है। किसको? इंटेल 404 को, इंटेल 4004 को। हाँ, तो उसके अगले ही साल तुरंत 1972 में इंटेल ने क्या किया? एक नया माइक्रो प्रोसेसर लाया, इंटेल 8008। क्यों इंटेल 8008 को लाया? बिकॉज जनरल पर्पस कंप्यूटिंग इसमें पॉसिबल नहीं था, इसमें जनरल कंप्यूटिंग पॉसिबल नहीं था। इसके लिए इंटेल ने बनाया 8008, द फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। अभी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है 8 डेटा लाइंस विथ द डेवलपमेंट ऑफ LSI टेक्नोलॉजी विथ 45 इंस्ट्रक्शंस। सो यहाँ पे 45 इंस्ट्रक्शंस थे, एंड ये 45 इंस्ट्रक्शंस को यूज करके हम लोग इजीली अपना कोडिंग एंड ऑल कर सकते थे, ठीक है। सो 45 इंस्ट्रक्शंस को यूज करके हम थोड़ा जनरल पर्पस कंप्यूटिंग का काम भी कर सकते थे, ठीक है। हाँ, सो दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन। आई होप सो आपको फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था ये क्लियर है। सो एग्जांपल में आप लिख सकते हो इंटेल 4040 भी एक एग्जांपल है। हाँ, जब इंटेल जैसी कंपनी है तो बाकी कंपनी शांत क्यों बैठे गए? सो टोशिबा भी आने स्टार्ट हो गया माइक्रो प्रोसेसर को बनाने में। सो टोशिबा ने भी एक मॉडल बनाया था T3472 इन द फर्स्ट जनरेशन। So first generation completed. So first generation microprocessor was started in the year 1971. पहला microprocessor जो था that was Intel 4004, which is a 4 bit microprocessor which was
like designed to only only to make the application of the calculators, but it cannot do any general purpose computing. So the immediately next year in 1972, Intel again made a new microprocessor with 8008, and now this microprocessor 8008 had 45 instructions with LSI technology, and here we can do some general computing. ठीक है, so this was the scenario in the first generation. So first generation में ये story थी. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो फर्स्ट जनरेशन के बाद फिर एवोल्यूशन हुआ सेकेंड जनरेशन का. सो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? सेकेंड जनरेशन स्टार्टेड इन द ईयर 1976. सो 1976 में आया 8085, जो कि अपना चैप्टर 1 और अपना चैप्टर 2 हम जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने वाले, दैट इज इंटेल 8085. इसको बनाया किसने? इंटेल. सो दिस इज Intel's 8085 was introduced. It is a 8-bit microprocessor. What is 8-bit microprocessor? 8 डेटा लाइन्स होते हैं, इसके लिए हम उसको बोलते हैं 8-bit microprocessor. Now बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मुझे आके क्वेश्चन पूछते हैं, सर आज के डेट पे क्या चल रहा है और आप क्या पढ़ा रहे हैं हमें, आप ये अच्छा हमारे CS के सिलेबस में ये क्यों है, 8085 को क्यों रखा है, आज के डेट पे हम कहाँ पे पहुँच गए? इंटेल कोर i5 पे है हम लोग, इंटेल कोर i9 पे हम लोग, इंटेल ड्यूल कोर प्रोसेसर पे, पेंटियम के पर पेंटियम 4, पेंटियम 5, पेंटियम 6 तक हम जा चुके हैं. तो अपन इसको क्यों लेके बैठे, 8085 को क्यों लेके बैठे? The main reason behind studying 8085 is इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, या इसका जो ब्लॉक मॉडल है, वो और आज के डेट के माइक्रोप्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम या ब्लॉक मॉडल ऑलमोस्ट सिमिलर है, या उसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है ना वो सेम होता है. ठीक है, सो अगर आपको कोई भी माइक्रोप्रोसेसर पढ़ना है, इफ यू वांट टू लर्न एनी माइक्रोप्रोसेसर, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 8085, देन यू हैव टू स्टार्ट विथ 8086, then the further models, and then after that you can come to the today's microprocessor. डायरेक्टली आप आज के डेट के माइक्रोप्रोसेसर के ऊपर जंप करोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको. ठीक है, ओके. डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर हैड बीन इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स अ कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड एज माइक्रो कंट्रोलर. सेकेंड जनरेशन में आ गया माइक्रो कंट्रोलर. माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है? अ स्मॉल इंटीग्रेटेड चिप विच हैज माइक्रोप्रोसेसर, विच हैज मेमोरी, विच हैज सीरियल इनपुट पोर्ट्स. ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर का मतलब क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर मतलब एक चिप रहेगा, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी रहेगा. माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग म्यूपी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं म्यूपी. सो म्यूपी इज नथिंग बट माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर को म्यूपी लिखा तो भी चलेगा. इनपुट आउटपुट भी इसके अंदर ही था और मेमोरी भी इसके अंदर था. ठीक है, मेमोरी वॉज ऑल्सो इनसाइड दिस. ठीक है, सो एक ही चिप है, एक ही चिप के अंदर जब सब कुछ इंटीग्रेट हो जाएगा उसको हम बोलेंगे माइक्रो कंट्रोलर. ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर का मतलब क्या होता है? उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी रहेगा, उसके अंदर इनपुट आउटपुट के पोर्ट्स भी रहेंगे और उसके अंदर मेमोरी भी रहेगा, जैसे कि रैम एंड रोम. अगर सब चीज़ एक ही चिप के अंदर इंटीग्रेट हो गया उसको हम बोलेंगे माइक्रो कंट्रोलर. सो फर्स्ट जनरेशन में था कैलकुलेटर, सेकेंड जनरेशन में आ गया माइक्रो कंट्रोलर. ठीक है, हाँ, विथ CPU, ROM, RAM, क्लॉक, इनपुट पोर्ट्स ऑल इन सिंगल पैकेज. ये दिख रहा है आपको सिंगल पैकेज, ये सिंगल पैकेज के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा. एग्जाम्पल इंटेल 8048, मोटोरोला MC6801. बाकी कंपनीज देखते रहे क्या इंटेल को नहीं, वो भी अपना अपना माइक्रो प्रोसेसर बनाने स्टार्ट कर देते. सो मोटोरोला सेकेंड जनरेशन में आ गया था. ठीक है, सो दिस वॉज द सेकेंड जनरेशन. Okay, so first generation में आया calculator, the second generation came the microcontroller. Now we go to the third generation. So third generation is the other major direction of microprocessor evaluation has been towards one which performs all functions in mini computer. अब माइक्रो कंट्रोलर से हम एवोल्यूशन करते करते आए मिनी कंप्यूटर्स पे. ठीक है, सो फर्स्ट जनरेशन कैलकुलेटर, सेकंड जनरेशन माइक्रो कंट्रोलर, थर्ड जनरेशन पे आ गए मिनी कंप्यूटर्स. व्हाट इज मिनी कंप्यूटर्स? द कंप्यूटर्स हुज साइज हैज बीन रिड्यूस्ड. अभी साइज कंप्यूटर का रिड्यूस कब होगा? व्हेन देयर इज एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स. राइट, जब माइक्रो प्रोसेसर इवॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली अपना कंप्यूटर का साइज भी कम हो जाएगा. which can work with bytes, strings of characters and instruction cycle और microseconds. ठीक है, सो देखो एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे अभी ज़्यादा काम हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ कर सकते हैं. इन 1978 इंटेल इंट्रोड्यूसेस हाई परफॉर्मेंस 16-bit माइक्रो प्रोसेसर. 16 bit मतलब 16 डेटा लाइन्स called as Intel 8086, now called as APX86. इसको ऐसे बोला जाता है 8086. मतलब 8085 का नेक्स्ट मॉडल था 8086, जो कि 16-bit माइक्रो प्रोसेसर का था, उसको APX86 ऐसे भी बोला जाता था. ठीक है, बट अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है? 8086 पढ़ना है क्या? नहीं, अपने सिलेबस में हमें पढ़ना है 8085, बिकॉज 8085 इज द बेसिक, और 8085 follows the generic microprocessor block diagram for all other microprocessor. So it is very important that first you have to understand the microprocessor 8085. It was introduced by Stephen Morse, Druce, Ravenel or other scientists. Examples of third generations are Intel 8086, 8088, Zilog 8, Z8000 and M6
800. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आपको याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। नाउ वी कम टू द 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। सो 4th जनरेशन में फिर आ गया इंटेल हैज इंट्रोड्यूस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। सो 4th जनरेशन में 32 बिट आ गया। इसके पहले वाले जनरेशन में कितना बिट माइक्रो प्रोसेसर था? एनी केसेस, इसके पहले वाले जनरेशन में लाइक 3rd जनरेशन में कितना बिट माइक्रो प्रोसेसर था? 3rd जनरेशन में 16 बिट था। 3rd जनरेशन में 16 बिट था, राइट। 2nd जनरेशन में 8 बिट था एंड 1st जनरेशन में 4 बिट था। आई होप सो एवरीबॉडी इज नोटिंग डाउन द नोट्स, राइट। नोट्स अगर आप लिखते रहोगे तो आपको इंस्टेंटली क्लिक होना चाहिए सब बातें, राइट। चलो, सो 4th जनरेशन में कितने बिट्स आ गए? 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर आ गया एंड इट कैन एड्रेस अ फिजिकल मेमोरी ऑफ 4 गीगाबाइट्स। मतलब फिजिकल मेमोरी का मतलब होता है आपका रैम एंड रोम। सो 4 गीगाबाइट्स तक हम लोग उसको एड्रेस कर सकते थे, जैसे कि M68020 HP32 APX432। अभी APX का मतलब होता है 8086, राइट। APX मीन्स 8086। अभी APX का नेक्स्ट मतलब 80X का नेक्स्ट मॉडल, 8086 का नेक्स्ट मॉडल था APX432। ये 32 इंडिकेट्स द बिट, 32 बिट का होता है वो, राइट। हाँ, सो 8086 कितने बिट का था? 8086 वाज ऑफ द 16 बिट। सो इसका नेक्स्ट मॉडल जो था वो था ये, जो कि था 32 बिट का। सो दिस वाज द 4th जनरेशन, ठीक है। एक छोटा सा रिवीजन, 1st जनरेशन में था कैलकुलेटर, 2nd जनरेशन में था माइक्रो कंट्रोलर, 3rd जनरेशन में मिनी कंप्यूटर, the fourth generation came with like 32-bit microprocessor which can address the physical memory, and now we come to the 5th generation. आज के डेट पे जो माइक्रोप्रोसेसर यूज होता है, all the microprocessor belongs to the 5th generation like Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 are recently introduced microprocessor by Intel. Intel has also made some microprocessor like Intel Core 2 Duo, Intel Xeon are most advanced microprocessor, but आज के डेट पे इससे भी एडवांस माइक्रोप्रोसेसर अपने पास आ चुका है, जैसे कि Intel Core i5, Intel Core i6, Intel Core i9, right? So we have a lot and a huge range of microprocessors, and आज के डेट पे जो भी माइक्रोप्रोसेसर्स है, all the microprocessors comes under the 5th generation. सब किसके अंदर आते हैं? 5th जनरेशन। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। सो आई होप सो एवरीबडी माइट हैव अंडरस्टूड द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। सो माइक्रोप्रोसेसर स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1971 बाय इंटेल 4004 विच वाज अ 4-बिट माइक्रोप्रोसेसर। उसको बस हम एक कैलकुलेटर के अंदर यूज कर सकते थे और उसके साथ कोई जनरल पर्पस कंप्यूटिंग नहीं कर पाते थे, इसीलिए इंटेल ने उसके अगले ही साल दैट इज 1972 में लाया इंटेल 8008, जिसके अंदर 45 इंस्ट्रक्शंस को डाल दिया था और हम लोग वहाँ पे बेसिक कंप्यूटिंग कर सकते थे। ये सब हुआ 1st जनरेशन में। फिर आया 2nd जनरेशन। 2nd जनरेशन में आया 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर, मतलब अपना आया पिक्चर का हीरो, दैट इज इंटेल 8085। वो अपना हीरो है, ठीक है, हीरो है। सो 2nd जनरेशन में आ गया 8085। 8085 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोप्रोसेसर विच इज ऑफ 8 बिट्स। लाइक इसके अंदर हम कुछ लाइक अरिथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे। एंड 2nd जनरेशन में फिर एवोल्यूशन हुआ माइक्रो कंट्रोलर का। फिर 3rd जनरेशन में आते हैं। 3rd जनरेशन में आया इंटेल 8086। 8086 इज अ 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर विच वाज यूज्ड 3rd जनरेशन में। आपका फिर मिनी कंप्यूटर आना स्टार्ट हुआ। देन वी केम टू द 4th जनरेशन। 4th जनरेशन 1981 में स्टार्ट हुआ था। 4th जनरेशन के जो भी कंप्यूटर्स थे, सो इट वाज हैविंग अ 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर एंड इट कैन एड्रेस अ फिजिकल मेमोरी अप टू 4 GB, राइट। लाइक इसके कुछ एग्जांपल्स थे। एंड 5th जनरेशन में आज के डेट पे जो भी लेटेस्ट माइक्रोप्रोसेसर्स है, ऑल द माइक्रोप्रोसेसर्स बिलोंग्स टू द 5th जनरेशन। सो एक छोटा सा रिवीजन मैंने आपको दे दिया, आप भी इस नोट्स को लिख लो, आप भी 1-2 बार रिवाइज कर लो पूरा। लाइक इतना ईजी है ना, लाइक मुझे पहले लगता था कितना डिफिकल्ट यार, क्या यार कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ ये सब कंसेप्ट, बट 1-2 बार जब मैंने भी खुद रिवीजन किया ऑटोमेटिकली बाय हार्ट होने लग गया। एंड कि अभी कभी भी आप मुझे कुछ भी पूछो, लाइक ये सब कंटेंट अभी याद रह जाता है, राइट। सो आप भी अगर 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे, आप लोग भी इसको याद रख सकते हो। सो वी हैव कंप्लीटेड द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। आफ्टर कंप्लीटिंग द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं कि बाबा माइक्रोप्रोसेसर होता क्या है। So what is exactly a microprocessor? What are the functions of microprocessor? Everything we are going to discuss in detail. See, what is microprocessor? इसको समझाने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। I have example with me to make you understand what is microprocessor. See, listen carefully. अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, tell me 2 + 3, या मैंने यहाँ पे लिखा, या मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा 2 + 3, तो क्या करते हो आप? पहले देखोगे ना उसको क्या लिखा है करके, आपने देखा। अब देखने के बाद वो इंफॉर्मेशन जाएगा अपने ब्रेन के पास। 2 + 3 कहाँ पे जाएगा? आपके ब्रेन के पास। आपका ब्रेन क्या करेगा उस इंफॉर्मेशन का? आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद यू आर गोइंग टू स्पीक अप द आंसर, यू आर गोइंग टू टेल मी द आंसर इज 5। ये सर ये अपने में होता है, ह्यूमंस में ऐसे होता है। अगर मैंने कुछ पूछा आपको, मैंने कुछ आपको बताया इंस्ट्रक्शन, तो उस इंस्ट्रक्शन को आप देखोगे, मतलब आप इनपुट दोगे। इनपुट कैसे दोगे? विद द हेल्प ऑफ योर आईज।
आप उसको प्रोसेस करोगे विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन एंड आप आउटपुट दोगे विद द हेल्प ऑफ योर माउथ, दैट इज योर रिजल्ट। ये होता है अपने केस में, बट एग्जैक्टली कंप्यूटर भी यही काम करता है। बट कंप्यूटर के पास आंखें होते हैं क्या? नहीं। कंप्यूटर के पास बोलने के लिए मुंह होता है क्या? नहीं। कंप्यूटर के पास इनपुट लेने के लिए होता है इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के पास क्या होता है? इनपुट लेने के लिए अपने पास आंखें है, बट कंप्यूटर के पास इनपुट लेने के लिए इनपुट डिवाइस। आउटपुट के लिए अपने पास माउथ है, बट कंप्यूटर के लिए आउटपुट के पास आउटपुट डिवाइस। आई कैन गिव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल इज योर माउस एंड कीबोर्ड। सो योर माउस एंड कीबोर्ड आर द बेस्ट इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस मतलब क्या? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। सो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर को यूज करके कंप्यूटर आपसे कम्युनिकेट करेगा एंड माउस कीबोर्ड को यूज करके आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हो। सो ऐसे कम्युनिकेशन होता है अपने में और कंप्यूटर के बीच में। सो आई होप सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। सो इनपुट देना पड़ेगा, इनपुट देने के बाद कंप्यूटर के ब्रेन में जाएगा। कंप्यूटर का ब्रेन कौन? माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर होता कहाँ पे? सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपका रहेगा माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड वहाँ पे और एक चीज रहेगा मेमोरी, रैम एंड रोम टू स्टोर द डेटा। So after storing the data processing will be done. After data processing, the output will be displayed or the result will be displayed by the output devices. समझ में? So how the computer works? So कंप्यूटर को समझो, मैंने कीबोर्ड पे टाइप किया 2 + 3। सो कीबोर्ड पे टाइप करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन जाएगा पहले मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर जाके पहले स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद फिर माइक्रो प्रोसेसर के पास आएगा। माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद अपना रिजल्ट अपने मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होगा। सो लाइक दिस द कंप्यूटर वर्क्स। सो दिस इज हाउ अ माइक्रो प्रोसेसर वर्क्स। ठीक है। सो मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया कि माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली क्या है। नाउ वी कम टू द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब भी जस्ट हमने डिस्कस किया कि माइक्रो प्रोसेसर ये होता क्या है, बट अभी हम एग्जैक्ट उसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पस, मतलब इसका मतलब ये होता है हम इसका मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। Programmable logic device, like we can program the device by a particular logic that reads binary instructions from a storage device called memory. So ये binary instructions को कहाँ से रीड करेगा? हम जो भी इनपुट देंगे, ठीक है, वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो कहाँ पे स्टोर होगा? मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है। मेमोरी में स्टोर होने के बाद एक्सेप्ट्स बाइनरी डेटा एज इनपुट, प्रोसेस डेटा प्रोसेसिंग होगा आपका माइक्रो प्रोसेसर के साथ अकॉर्डिंगली टू दोज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। मतलब प्रोसेसिंग कैसे भी नहीं होगा, आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपका डेटा प्रोसेस होगा। आपका डेटा प्रोसेस होने के बाद इट प्रोवाइड्स अ रिजल्ट एज अ आउटपुट, देन यू आर गोइंग टू गेट अ रिजल्ट एज अ आउटपुट। सो दिस इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। और एक बार रिवाइज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, राइट ऑन द फंक्शंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फॉर 3 मार्क्स। सो क्वेश्चन अगर ऐसे आया व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, तो आपको लिखने आना चाहिए, अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस that reads binary data from the memory, it accepts the binary data as input, it processes the data and it is going to display the result in the form of output. So ये आपको डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे बोर्ड के पेपर्स में अब तक ये डेफिनेशन आ चुका है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का भी ब्लॉक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हमने देखा था माइक्रो प्रोसेसर, बट इसका भी ब्लॉक डायग्राम अगर आप देखोगे, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बेसिकली 3 यूनिट्स होते हैं इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर। अभी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अपन जा रहे हैं। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर का ब्लॉक डायग्राम अपन डिस्कस करें। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर और 3 यूनिट्स होता है। द फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड एज द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। द सेकंड इज कॉल्ड एज रजिस्टर्स एंड द थर्ड इज कॉल्ड एज द कंट्रोल यूनिट। इन शॉर्ट आपको मैं इसका मतलब बता देता हूं, आई विल एक्सप्लेन यू। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU, arithmetic and logic unit performs all the arithmetical operation as well as the logical operations. So आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो भी arithmetical operations होगा, arithmetical operations का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, सो ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय ALU यूनिट। तो ये यूनिट ही परफॉर्म करेगा उसको, ये यूनिट परफॉर्म करेगा। ठीक है। ये मैथमेटिक्स का टीचर है, मैथमेटिक्स गुरु है, अपने कंप्यूटर का मैथमेटिक्स गुरु कौन? ALU। सो ALU परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिकल ऑपरेशन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉर, लॉजिकल एक्सॉर। सो आपने 11th में पढ़ा रहेगा लॉजिक गेट्स में, राइट। सो जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस है, सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने में कौन हेल्प करेगा? ALU। सो दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू लाइक परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिकल ऑपरेशंस एज वेल एज द लॉजिकल ऑपरेशंस। कोई भी ऐसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस आएगा 2 + 3, ये ऐसे सब इंस्ट्रक्शन किसके पास जाएगा? ALU, बिकॉज इसको प्रोसेस वही कर सकता है, वही तो मैथमेटिक्स गुरु है।
ठीक है। आफ्टर दैट वी कम टू द रजिस्टर्स। रजिस्टर्स बेसिकली अपने पास जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर। व्हाट आर द जनरल पर्पज रजिस्टर्स? जनरल पर्पज रजिस्टर में आता है रजिस्टर ए, ठीक है, रजिस्टर ए, ये याद नाम याद रखना है, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी, रजिस्टर डी, रजिस्टर ई, रजिस्टर एच एंड रजिस्टर एल। सो दीज आर द जनरल पर्पज रजिस्टर्स। अब ये सारे के सारे रजिस्टर्स होते हैं 8 बिट के। 8 बिट का मतलब होता है हम 8 बिट का डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, 8 बिट का डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा। व्हाट इज रजिस्टर्स? रजिस्टर्स का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्स को यूज करके हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब रजिस्टर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। 8085 के ये रजिस्टर्स है। नेक्स्ट वी कम टू द कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट इज द बैकबोन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। सो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? हर एक चीज को कंट्रोल करना, कौन सा इनपुट आएगा, कौन सा आउटपुट जाएगा, किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, किसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, किसको इंपॉर्टेंस देना है, किसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, हर एक डिसीजन कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करेगा। सो कंट्रोल यूनिट इज बेसिकली गोइंग टू परफॉर्म ऑल द, मतलब सबको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का। बेसिकली क्या है ना, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस अपने एएलयू के पास, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एकदम आगे, जैसे कि 2+3, 2+3, 4+4, 8+8, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस अपने एएलयू के अंदर एक ही टाइम पे आ गए तो अपना एएलयू किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, वो हैंग हो जाएगा वो, ठीक है। सो एक एक करके आना पड़ेगा, इनको एक एक करके आना पड़ेगा, इनके प्रायोरिटी के हिसाब से, एक एक को आना पड़ेगा। तो इनको एक एक को भेजेगा कौन? कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट सबको कंट्रोल करेगा, एक एक को भेजेगा प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेन ब्लॉक्स इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। देन वी हैव इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट का तो मैंने आपको बोला, अगर आपको कंप्यूटर से कुछ बात करना है तो यू कैन यूज द माउस और यू कैन यूज द कीबोर्ड। और अगर कंप्यूटर को आपसे कुछ बोलना है तो कंप्यूटर कैन यूज द मॉनिटर, कंप्यूटर कैन यूज द प्रिंटर टू प्रिंट समथिंग, द कंप्यूटर कैन यूज द like speakers, and computer can give you the information, right? After that we come to memory. memory basically दो होता है memory, एक होता है आपका RAM जिसको हम बोलते हैं random access memory, और एक होता है अपना ROM। ROM का मतलब होता है read only memory. So these RAM and ROM are used to store the data. memory का काम क्या होता है? store the data, ठीक है, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट वी हैव सिस्टम बस। व्हाट इज सिस्टम बस? सिस्टम बस, अभी इनके बीच में कोई तो कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए ना। अगर इनपुट कोई आया डेटा तो वो डेटा कैसे हवा से उड़ के जाएगा क्या उधर? नहीं, उनके बीच में कुछ तो कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए। सो इनपुट, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है ना उसको हम बोलते हैं बस। सो इंटरनल बस। बस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टिंग वायर्स। बस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टिंग वायर्स विच इज यूज्ड टू सेंड और विच इज यूज्ड टू रिसीव द डेटा, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन विद डेफिनेशन। आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू राइट डाउन दिस। ये अच्छे से अपने अपने नोटबुक में लिख लो, बिकॉज ये एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट होता है, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। लाइक दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम मेनी टाइम्स, ओके। चलो, एंड ये सब ब्लॉक डायग्राम पेंसिल स्केल से अच्छे से बना के रख लेना। चलो, आफ्टर दैट हम ये हर एक यूनिट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन ऐसे भी आता है 3 मार्क्स के लिए, चाहे तो ये भी लिख लो, कहीं तो लिख के रखो, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। सो लाइक दिस क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम फॉर 3 मार्क्स, राइट। चलो, सो बेसिकली अपना माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 3 ही ब्लॉक है, ALU, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट। अभी ALU का मतलब क्या होता है? एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, दिस इज द एरिया ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर वेयर वेरियस कंप्यूटिंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड ऑन डेटा। सो यहाँ पे ही सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। द ALU यूनिट परफॉर्म्स एरिथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अपना माइक्रो प्रोसेसर 8085 डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकता, ठीक है। आपका 8085 कैन नॉट डू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बट वी कैन यूज द रिपीटेटिव एडिशन एंड वी कैन यूज द रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन इनिशियली हो जाता है, एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एंड और नॉट एंड एक्सक्लूसिव और, ये सब कहाँ पे परफॉर्म होगा? ये सब इसका डिपार्टमेंट है, ALU का डिपार्टमेंट है, ये सब चीज़ें ALU के अंदर होगा। रिजल्ट्स आर स्टोर्ड ईदर इन रजिस्टर्स और इन द मेमोरी। सो जो भी रिजल्ट जनरेट होगा, अभी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ऑपरेशन के बाद कोई तो रिजल्ट जनरेट होना चाहिए, तो रिजल्ट फिर कहाँ पे स्टोर होगा? एक तो रजिस्टर्स, याद है, A B C D E H and L, एक तो रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा या तो कोई मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, मतलब RAM या ROM के अंदर जाके स्टोर होगा। So this is your ALU. This is your ALU. Now we come to registers. Register. This area of microprocessor consists of various registers. Register A, register B, C, D, E, H
and L. These are the registers, right? These registers are primarily used to store data. ये पढ़ो ये क्या है, ये सबसे important. These registers are used to what? These registers are used to store the data. Temporary डेटा कैसे स्टोर होता है? टेम्पररी, मतलब एग्जीक्यूशन होने तक वो डेटा स्टोर होगा, एग्जीक्यूशन हो गया तो उसके बाद वो डेटा इरेज भी हो सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. एग्जीक्यूशन होने तक वो डेटा टेम्पररी स्टोर रहेगा ये रजिस्टर्स के अंदर. सम ऑफ द रजिस्टर्स आर एक्सेसिबल टू द यूजर थ्रू इंस्ट्रक्शंस. हाँ, हम कुछ रजिस्टर्स का एक्सेस ले सकते हैं, हम कुछ रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय सम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. चैप्टर 2 में हम डिस्कस करने वाले कि कौन सा इंस्ट्रक्शन को यूज करके हम लोग कौन से रजिस्टर्स का यूज कर सकते हैं. Next we come to the control unit. The control unit provides the necessary timing and control signals to all the operations in the microcomputer. So control unit क्या करता है ना, ये कुछ टाइमिंग सिग्नल्स को रिलीज करता है, मतलब ये टाइम के अंदर ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए. हर एक टास्क को एक टाइम असाइन करेगा एंड वो टाइम के अंदर वो टास्क कंप्लीट करवा के लेगा, ठीक है. सो मेनी टाइमिंग सिग्नल्स एंड द कंट्रोल सिग्नल्स आर रिलीज बाय द कंट्रोल सिस्टम. बेसिकली हर एक ऑपरेशन का प्रॉपर कंट्रोल रखने का काम किस करेगा? कंट्रोल यूनिट. What will happen if you don't keep the proper control? If you don't keep the proper control, तो अपना एग्जीक्यूशन प्रॉपर वे में नहीं होगा, अपना ALU हर एक चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा. It controls the flow of data between the microprocessor and memory and the peripherals. So डेटा को लाना, डेटा को सेंड करना, ये सब कौन सा डेटा कब आएगा, कौन सा डेटा कब जाएगा, ये सब डिसाइड कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट. सो कंट्रोल यूनिट इन शॉर्ट कंट्रोल्स ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. सो आई होप सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए हमने कंप्लीट किया है. आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू राइट डाउन दिस नोट्स. चाहे तो वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके ये नोट्स लिख लो. You can pause the video and you can note it down. चलो, after discussing this we go to the next slide. Now we are going to discuss the functions of microprocessor. जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, व्हाट इज माइक्रोप्रोसेसर, हाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज माइक्रोप्रोसेसर. तो आपको वो डेफिनेशन लिखना है, माइक्रोप्रोसेसर का डेफिनेशन. उसके बाद आपको फंक्शंस लिखना है, ठीक है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है. माइक्रोप्रोसेसर के फंक्शंस क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना ये वीडियो में, ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ऑल द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. फंक्शंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर का सबसे पहला फंक्शन क्या है? टू फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एज पर द प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है. अभी आपका इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे? मेमोरी लोकेशन पे है. हमेशा याद रखो आपका इंस्ट्रक्शन कहाँ पे? मेमोरी लोकेशन. सो मेमोरी C00H, C001H, C002H, ऐसे मेमोरी लोकेशन रहेगा. सो यहाँ पे समझो है आपके पास 8 और यहाँ पे समझो आपके पास है 2, ठीक है. ठीक है, 8 है एंड यहाँ पे आपके पास है 2. अब मुझे इन दोनों का एडिशन करना है, ठीक है. तो सबसे पहले ये डेटा को मुझे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेके तो जाना पड़ेगा. इसके ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है. कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन को फायर करना है इसके ऊपर? प्लस, मतलब ऐड करना है. तो ये अभी मेमोरी लोकेशन के अंदर है. तो ये मेमोरी लोकेशन के अंदर प्रोसेसिंग होता है क्या? मेमोरी के अंदर प्रोसेसिंग होता है क्या? नहीं, इसको आपको पहले लेके जाना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर. सो यहाँ से इसको पहले लेके जाना पड़ेगा अपने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर. सो जब हम इसको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेके, माइक्रो प्रोसेसर यूपी, ये उसके पिंस, ठीक है. सो जब हम इसको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेके जाएंगे तो उसी को हम बोलते हैं फेच. सो व्हेन वी टेक द डेटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन टू द माइक्रोप्रोसेसर, दैट इज कॉल्ड एज फेचिंग ऑफ डेटा. उसको हम बोलते हैं फेच. फेच करने के बाद हमें इसको डिकोड भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है डेटा दैट इज गिवन इन द डेसिमल फॉर्म, इसको हमें लेना पड़ेगा इन बाइनरी फॉर्म फॉर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन. तो उसको डिकोड करने का काम भी किस करेगा? माइक्रोप्रोसेसर करेगा. तो फेच करेगा, एक तो पहले मेमोरी लोकेशन से माइक्रोप्रोसेसर के अंदर लाएगा, उसको डिकोड करेगा, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, एंड देन उसके बाद वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा जो इंस्ट्रक्शन यूजर ने दिया है, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, जो इंस्ट्रक्शन यूजर ने दिया है वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रॉपर ऑर्डर में उसको हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे. ये था अपना पहला फंक्शन. टू फैच मतलब मेमोरी लोकेशन से अपने माइक्रोप्रोसेसर के अंदर डेटा को लाना, इसको हम बोलते फैच. डिकोड मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना, एंड एग्जीक्यूट मतलब उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना. नाउ सेकंड फंक्शन इज दैट ट्रांसफर डेटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी टू एंड फ्रॉम इनपुट आउटपुट सेक्शन. मतलब मेमोरी से लेके कोई भी इनपुट आउटपुट को डेटा ट्रांसफर करना हो, या इनपुट आउटपुट से डेटा मेमोरी को देना हो. जैसे कि हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं 5, तो 5 माइक्रोप्रोसेसर के अंदर कैसे जाएगा? 5 को लेके जाने का काम, लाइक 5 को जब हम प्रेस करते तो आपका माइक्रोप्रोसेसर का ही फंक्शन है. माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? उस डेटा को अपने रजिस्टर के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है. सो व्हेन इफ यू वांट टू गिव एनी आउटपुट
इफ यू वांट टू गिव एनी आउटपुट और इफ यू वांट टू टेक एनी इनपुट, ठीक है, मतलब आपको मेमोरी से कोई इनपुट आउटपुट देना है या इनपुट आउटपुट से कोई मेमोरी सेक्शन तक कुछ पास करना है, तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। और डेटा ट्रांसफर करने में आपको हेल्प कौन करेगा? आपका माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रो प्रोसेसर कैन हेल्प टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू इनपुट आउटपुट एंड फ्रॉम इनपुट आउटपुट टू मेमोरी। थर्ड, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स बेसिकली क्या है? आपके माइक्रो कंट्रोलर के, आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास एक तो इंटरप्ट कंट्रोलर करके कुछ होता है, इंटरप्ट कंट्रोलर, ठीक है, हम इंटरप्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इंटरप्ट बेसिकली क्या होता है? भाई इफ अ माइक्रो प्रोसेसर, देखो अभी समझो यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, इमेजिन करो मेरा लैपटॉप है, ठीक है, या आपका लैपटॉप है, आपका लैपटॉप आप यूज़ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग ए लैपटॉप, बट आपको क्या लगता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है? अगर आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो ना, तो भी आपके माइक्रो प्रोसेसर के, मतलब आपके कंप्यूटर के बैकएंड में कुछ ना कुछ काम चालू रहता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, आपका डेटा फाइल्स का, कुछ ना कुछ प्रोग्राम फाइल्स, सिस्टम फाइल्स, बहुत सारी चीज़ें, टेम्परेरी फाइल्स, कुछ ना कुछ काम आपका माइक्रो प्रोसेसर करते रहता है जब तक वो ऑन है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर उसका काम कर रहा है और मैंने जाके कीबोर्ड पे एक बटन दबाया, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इज एंगेज्ड इन डूइंग इट्स वर्क, बट व्हेन आई एम गोइंग टू प्रेस एनी बटन और व्हेन आई एम गोइंग टू गिव एनी एक्सटर्नल सिग्नल, अभी मैं जब बटन प्रेस करूंगा तो वो एक एक्सटर्नल सिग्नल को राइज करेगा। सो माइक्रो प्रोसेसर तो अपना काम कर रहा था, बट मैंने जब बटन प्रेस किया तो उसने एक एक्सटर्नल सिग्नल दे दिया, तो उसके लिए वो सिग्नल बन जाएगा इंटरप्ट। तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए मैंने जो बटन का सिग्नल पास किया वो सिग्नल क्या हो जाएगा उसके लिए? इंटरप्ट। सो इंटरप्ट, ऐसे बहुत सारे इंटरप्ट्स अगर आ गए तो भी अपना माइक्रो प्रोसेसर को मैनेज कर सकता है, बिकॉज आर माइक्रो प्रोसेसर हैज समथिंग कॉल्ड एज इंटरप्ट कंट्रोलर। इंटरप्ट कंट्रोलर हेल्प्स टू कंट्रोल ऑल द इंटरप्ट्स व्हिच आर अराइज्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रो प्रोसेसर जब उसका काम कर रहा है उस वक्त अगर हमने कुछ मस्ती किया तो वो मैनेज करने के लिए अपने पास है इंटरप्ट मैनेजर या इंटरप्ट कंट्रोलर। सो अपना माइक्रो प्रोसेसर हर एक एक्सटर्नल इंटरप्ट को बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड भी करेगा, मतलब किसको इंपॉर्टेंस देना है, किसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, वो सब अपना माइक्रो प्रोसेसर को पता है। बेस्ड ऑन दैट इट इज गोइंग टू गिव यू द इंपॉर्टेंस और इट मे नॉट गिव यू द इंपॉर्टेंस। प्रोवाइड ओवरऑल टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स फॉर द एंटायर सिस्टम। हाँ भाई, अपने पूरे सिस्टम को टाइमिंग देना और कंट्रोल में रखना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? माइक्रो प्रोसेसर। रीड और राइट ऑफ डेटा इनटू मेमोरी, सो बाई डायरेक्शनल बस इज रिक्वायर्ड। सो एक तो हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करके हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करके हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं, बट उसके लिए सिर्फ आपको एक हेल्प लगेगा, दैट इज बाई डायरेक्शनल बस। बाई डायरेक्शनल बस अगर रहेगा तो आप माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करके आपके डेटा को रीड भी कर सकते हो या आपके डेटा को आप राइट भी कर सकते हो। एंड देन वी कम टू द लास्ट फंक्शन, ऑल प्रोसेसिंग एंड डेटा फ्लो इज डन इन द सिस्टम विद इन एमपीयू चिप्स। एमपीयू का मतलब होता है, MP मतलब माइक्रो प्रोसेसर, U का मतलब ये होता है यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट्स चिप्स। सो आपका जो भी प्रोसेसिंग होता है, आपका जो भी डेटा फ्लो होता है, ऑल हैपेंस इनसाइड व्हाट? इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। जैसे मैंने आपको बोला फेच का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 2+3 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। सो 2+3 आपका मेमोरी के अंदर है, ठीक है, आपके मेमोरी के अंदर है। सो हम ऐसे इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, ऐड बी। सो ये ऐड बी का मतलब होता है, ऐड बी बोलो या मूव ए कॉमा बी बोलो, ऐसे इंस्ट्रक्शंस यूज़ करने के बाद हम ये मेमोरी से कहाँ पे लाएंगे? हम ये मेमोरी से डायरेक्टली अपने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाएंगे। सो आफ्टर फायरिंग दिस इंस्ट्रक्शन ऐड बी मूव ए कॉमा बी, तो हम अपने डेटा को, जो अपने मेमोरी के अंदर जो डेटा था, उस डेटा को हम लोग एक्जैक्टली ला सकते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। एंड माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अगर डेटा आ गया तो वी कैन डू द प्रोसेसिंग मतलब उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यही बस एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे दिया हुआ है। चलो, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नाउ वी कम टू द फीचर्स ऑफ 8085। देखो आपके एग्जाम में फंक्शंस ऑफ 8085 नहीं पूछा तो इतना श्योर रहो, अगर आपको फंक्शंस नहीं पूछा तो आपको फीचर्स पूछेंगे, फीचर्स नहीं पूछा तो फंक्शन पूछेंगे। बट क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे होगा? व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे होगा? व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, एक्सप्लेन द वेरियस फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो जब वो फीचर्स बोलेंगे तो आपको ये फीचर्स पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी से फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फीचर्स का मतलब होता है अपने माइक्रो प्रोसेसर 8085 का खास बातें, ठीक है। फीचर्स का मतलब क्या होता है? द खास बात। चलो सबसे पहला फीचर क्या है? इट इज डिजाइन बाय इंटेल इन 1976। सो अपना 8085 की बात चल रहा है। सो 8085 वाज डिजाइन इन द ईयर 1976। सो इंटेल 8085, इसको पूरा नाम क्या है? इंटेल 8085। सो इंटेल 8085 इज अ 8-bit जनरल पर्पस प्रोसेसर। इट इज अ 8-bit जनरल पर्पस प्रोसेसर। व्हाट इज 8-bit? 8-bit का मतलब होता है इट हैज 8 डेटा लाइन्स। सो अपने माइक्रो प्रोसेसर 8085 के पास कितना डेटा लाइन्स रहेंगे? 8 डेटा लाइन्स रहेंगे, ठीक है।
सो इंटेल 8085 इज अ 8-bit जनरल पर्पज माइक्रोप्रोसेसर. इट हैज़ 8 डेटा बस. देखो, इट हैज़ 8-bit डेटा बस. सो जितना डेटा बस उसका रहेगा उतना ही उस माइक्रोप्रोसेसर का साइज रहेगा या उतना उस माइक्रोप्रोसेसर का बिट रहेगा. ठीक है. सेकेंड, द माइक्रोप्रोसेसर इज केपेबल ऑफ एड्रेसिंग 64K. 64K का मतलब है 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी. अपना माइक्रोप्रोसेसर 64 किलोबाइट मेमोरी को एड्रेस कर सकता है. ठीक है. इट हैज़ 16 बिट्स एड्रेस बस. अब ये डेटा बस क्या है, व्हाट इज दिस डेटा बस, व्हाट इज एड्रेस बस, अभी आपको एक 5 मिनट के बाद आपको कंसेप्ट में समझ में आ जाएगा. अपना नेक्स्ट टॉपिक वही है, डेटा बस, एड्रेस बस. बस इतना याद रखो, एड्रेस बस क्या करेगा, आपके माइक्रोप्रोसेसर को बताएगा कि मेमोरी लोकेशन में आपका डेटा किधर है. ठीक है. एड्रेस बस क्या करेगा, एड्रेस बस मतलब वायर्स होते. सो एड्रेस बस बेसिकली क्या करेगा, आपके माइक्रोप्रोसेसर को बताएगा कि आपका डेटा किधर है. जैसे कि मैंने अगर बोला 2+3, तो ये एड्रेस बस क्या बोलेगा, ये 2 किधर है और ये 3 किधर है. तो इसका मेमोरी लोकेशन बताने में कौन हेल्प करेगा, एड्रेस बस. और डेटा बस क्या करेगा, अब ये 2 एंड 3 को एग्जैक्टली वो मेमोरी लोकेशन से माइक्रोप्रोसेसर में लाने का काम. अगेन रिपीट, डेटा बस क्या करेगा, डेटा बस ये डेटा को मतलब एड्रेस बस से जहाँ पे पॉइंट किया ना, वहाँ से डेटा को लेके आने का काम किस करेगा, डेटा बस. एड्रेस बस सिर्फ पॉइंट करेगा, डेटा को वहाँ से एग्जैक्टली लेके आने का काम किस करेगा, डेटा बस करेगा. ठीक है. डेटा को एग्जैक्टली वहाँ से लेके आने का काम किस करेगा, डेटा बस करेगा. सो ये 2 एंड 3 जो अपने मेमोरी लोकेशन में था, इसको अपने माइक्रोप्रोसेसर के अंदर लाने में हेल्प किसने किया, आपका डेटा बस. दिस डिवाइस हैज़ अ 40 पिंस ड्यूअल इन पैकेज. दिस इज कॉल्ड एज डिप पैकेज. हाँ, अगर आप देखोगे तो आपका माइक्रोप्रोसेसर ऐसे 40 पिंस का रहेगा. हम पिन डायग्राम देखने वाले, बट ऐसे 40 पिंस रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड पे 20 पिंस, राइट हैंड साइड पे 20 पिंस. तो ऐसे 40 पिंस का डायग्राम रहेगा. ठीक है. 40 पिंस का माइक्रोप्रोसेसर रहेगा ये. ठीक है. एंड इट रिक्वायर्स +5 वोल्ट सिंगल पावर सप्लाई. माइक्रोप्रोसेसर फ्री में थोड़ी काम करेगा, उसको पावर सप्लाई भी देना पड़ेगा. एंड माइक्रोप्रोसेसर 8085 रिक्वायर्स +5 वोल्ट. ठीक है. बस +5 वोल्ट का चार्ज उसको लगेगा अगर हमें उस माइक्रोप्रोसेसर को यूज़ करना है तो. इट कैन ऑपरेट विथ 3 मेगाहर्ट्ज सिंगल फेस क्लॉक. 3 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है एम मतलब मिलियन, हर्ट्स मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल्स पर सेकेंड. सो दिस माइक्रोप्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट 3 मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. स्पीड तो ज़बरदस्त है, बट यहाँ पे काम ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड काम है. जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ऐसे काम हम कर सकते हैं माइक्रोप्रोसेसर 8085 को यूज़ करके. ठीक है. सो इसका स्पीड कितना है, 3 मेगाहर्ट्ज. इसका स्पीड कितना रहेगा, 3 मेगाहर्ट्ज. द 8085 इज enhanced 8085 इज enhanced वर्जन ऑफ 8080. पहले 8080 हुआ करता, फिर इसको मॉडिफाई किया और इसको मॉडिफाई करके एक नया नाम दे दिया 8085. 8085 यूजेस अप्रॉक्सीमेटली 65,000 ट्रांजिस्टर्स. यस, आपने 8085 माइक्रोप्रोसेसर के अंदर आप अगर देखोगे तो इसके अंदर 65,000 ट्रांजिस्टर्स का लॉजिक लगा हुआ है. सो 65,000 ट्रांजिस्टर्स आर देयर. ओके. इट इज़ अपवर्ड कंपेटेबल विथ 8080. हाँ, लाइक 8080 के अंदर जो भी फीचर्स है, 8080 के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस है, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस कंपेटेबल है आपके 8085 के अंदर भी. प्रोग्राम रिटर्न इनसाइड 8080 कैन ऑल्सो भी एग्जीक्यूटेड बाय 8085, बिकॉज उसका ही वर्जन है ना आपका. 8080 का हायर वर्जन है 8085. तो आप जो भी कोड्स 8080 के लिखते हैं, तो वो कोड्स आप 8085 में भी बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो. ठीक है. सो दीज आर द लाइक फीचर्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085. हाँ, अभी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, डेटा बस का साइज कितना था, डेटा बस इट इज ऑफ 8 बिट. सो 8 बिट का मतलब होता है लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दिस इज कॉल्ड एज बिट्स. अभी पॉसिबिलिटी क्या है, आपका डेटा बस मतलब 8 बिट का है, 8 बिट का है, मतलब इसका पॉसिबिलिटी क्या है, 0 0 से स्टार्ट हो सकता है एंड 1 1 1 1 1 1 1 1 मतलब FF तक जा सकता है. ये हेक्साडेसिमल में दिया है. ठीक है. बाइनरी हेक्साडेसिमल. सो दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा बस. मतलब आपका डेटा बस इसके बीच में रह सकता है, 0 से स्टार्ट होकर FF तक जा सकता है डेटा बस, बिकॉज इट इज ऑफ 8 बिट. बिकॉज इट इज ऑफ हाउ मच बिट, 8 बिट. कितना बिट का है, 8 बिट. वैसे ही आपका एड्रेस बस जो है, एड्रेस बस इज ऑफ 64 KB. 64 मतलब 16 बिट. 64 KB का मतलब कितना होता है, 16 बिट. आपका एड्रेस बस कितने बिट का है, 16 बिट. 16 मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 बिट. पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 0 0 0 से स्टार्ट हो सकता है एंड जब तक सब 1 नहीं होगा तब तक वो कंटिन्यू हो सकता है. सो 0 0 0 0 से लेके FF तक. सो दिस इज कॉल्ड एज अ एड्रेस बस. सो एड्रेस बस की ये पॉसिबिलिटीज़ है. ठीक है. सो एड्रेस बस का ये पॉसिबिलिटीज. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085. ठीक है. माइक्रोप्रोसेसर 8085 के ये है फीचर्स. सो एवरीबडी नोट डाउन दिस पॉइंट्स केयरफुली एंड इसको एक बार रिवाइज भी कर लो.
ओके, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085 नाउ वी कम टू द पिन डायग्राम। ये होता है अपना पिन डायग्राम ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085। आपका माइक्रोप्रोसेसर जो 8085 का होता है ना, उसके ऊपर 40 पिन्स होते हैं। हाउ मेनी पिन्स आर देयर टोटल? 40। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर आर 20 पिन्स एंड ऑन द राइट हैंड साइड देयर आर द 20 पिन्स। सो 20 + 20 टोटल देयर आर 40 पिन्स। ठीक है, सो 40 पिन्स में अभी ये क्या है, X1 X2 रीसेट आउट, दीज ऑल आर द सिग्नल्स, आपके माइक्रोप्रोसेसर के सिग्नल्स है ये। ठीक है, सो X1 X2 ये बेसिकली क्लॉक फ्रीक्वेंसी को सेट करने में हेल्प करेगा। मैं आपको अभी इन शॉर्ट बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, हर एक पिन का डिस्क्रिप्शन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, X1 X2 फ्रीक्वेंसी क्लॉक का सेट करने के लिए यूज होता है। रीसेट आउट मतलब आपको अगर कोई आउटपुट को रीसेट करना है तो रीसेट आउट। ठीक है, SOD SID सीरियल आउटपुट डेटा, सीरियल इनपुट डेटा। ठीक है, सो ये सब हो गया इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका इनपुट एंड आउटपुट। SID SOD इज योर इनपुट आउटपुट। सो दिस बोथ आर योर इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR, इसको हम बोलते हैं इंटरप्ट। मैंने आपको बोला ना इंटरप्ट को मैनेज करने के लिए ये 4 पिन्स होते हैं। ठीक है, जो भी इंटरप्ट आएगा उसको ये मैनेज करेगा। ठीक है, ये भी फिर ये होता है INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेज। ठीक है, ये होता है आपका एड्रेस डेटा बस, दिस इज कॉल्ड एज योर एड्रेस प्लस डेटा बस। एड्रेस डेटा बस लाइक AD 0 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा AD 7 तक, मतलब एक कॉम्बिनेशन में रहेंगे एड्रेस बस और डेटा बस। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में रहेंगे एड्रेस बस और डेटा बस। ये VSS और VCC मतलब ये होता है बेसिकली आपका लाइक चार्ज इन चार्ज आउट। आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना, लाइक +5 वोल्ट लगेगा और यहाँ पे लाइक हमें इसको ग्राउंड भी करना पड़ेगा। हमें +5 वोल्ट लगेगा और हमें इसको ग्राउंड भी करना पड़ेगा अगर हमें माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करना है तो VSS एंड VCC हेल्प्स इन पावर सप्लाई। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एड्रेस बस। सो दिस इज ओनली योर प्योर एड्रेस बस। ठीक है, इसमें डेटा बस नहीं रहेगा, सिर्फ इसमें एड्रेस बस। एड्रेस बस हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। एड्रेस बस होते कितने बिट के? 16। इसके लिए आपको 16 पिन दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी 0 को काउंट करके हमने गए, इसके लिए हमको मिला 16 बिट। सो एड्रेस बस कितने बिट का होता है? 16 बिट। इसके लिए उसके 16 लाइन्स होते हैं। कितने लाइन्स होते हैं? 16 लाइन्स होते हैं। एंड डेटा बस के होते हैं 8 लाइन्स। 8 लाइन्स डेटा बस के होते हैं 8 लाइन्स। ठीक है, उसके बाद ALE का मतलब होता है एड्रेस लैच एनेबल। अगर आपको एड्रेस बस और डेटा बस को साथ में यूज़ करना है, एड्रेस बस डेटा बस को साथ में कंबाइन यूज़ करना है, तो आपको इस सिग्नल को हाई करना पड़ेगा। जैसे ही एड्रेस लैच एनेबल का सिग्नल हाई हो जाएगा, आप ये दोनों बस को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो। रीड सिग्नल किसी कुछ रीड करना है तो, राइट सिग्नल कुछ राइट करना है तो S1। ठीक है, ये S1 S0 सीरियल, ये सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी, रीड सिग्नल, रीसेट इन, क्लॉक आउट, होल्ड एक्नॉलेज। होल्ड का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर समझो एक ही टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन आने की कोशिश करते हैं तो उसको होल्ड किया जाएगा। मतलब एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होने के बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, ऐसे सीक्वेंस में आएगा। अगर एक साथ सब आए तो उसको होल्ड किया जाएगा। और होल्ड को निकालने के लिए हम लोग करते हैं होल्ड एक्नॉलेज। सो अगर समझो किसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने लगा दिया होल्ड, तो वो होल्ड निकालने के लिए फिर मुझे करना पड़ेगा होल्ड एक्नॉलेज। ठीक है, सो लाइक दिस देयर आर 40 पिन्स एंड ये 40 पिन्स आपको याद रखना पड़ेगा। ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका थोरोली प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका पिन डायग्राम क्लियर होगा। सो आई वॉन्ट एवरीवन टू पॉज दिस वीडियो एंड राइट डाउन और ड्रॉ द पिन डायग्राम। चलो, आफ्टर डिस्कसिंग द पिन डायग्राम नाउ वी कम टू बस एंड द टाइप्स ऑफ बस। ये देखो बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा है, और भी लाइक दिस इज आल्सो आस्क्ड इन द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर लाइक March 24, March 23, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज बस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बस। सो बस क्या होता है बेसिकली? बस इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स विच कैरीज इंफॉर्मेशन टू ऑल पेरिफेरल्स एंड कनेक्टेड टू माइक्रोप्रोसेसर थ्रू बस। ठीक है, सो आपके आप बस क्या होता है बेसिकली, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टिंग वायर्स। आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी वायर्स होते हैं ना, सो उसको अपन बोलते हैं बस। सो माइक्रो प्रोसेसर से लेके डेटा को मेमोरी तक भेजना है या मेमोरी से डेटा को लाके माइक्रो प्रोसेसर में रखना है, तो ये सब के लिए हमें लगेगा बस। इन सब के लिए हमें लगेगा बस। डेटा से हवा में नहीं उड़ के जाएगा रे, डेटा को सेंड करना है या डेटा को रिसीव करना है तो उसके हमें लगेगा बस। ठीक है, तो बस अभी 3 टाइप के होते हैं। बस क्या समझा सबको? और एक बार बस इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स विच कैरीज इंफॉर्मेशन टू ऑल पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स का मतलब होता है माउस कीबोर्ड सब। टू ऑल पेरिफेरल्स विच आर कनेक्टेड टू माइक्रो प्रोसेसर थ्रू बस। ठीक है, सो माउस कीबोर्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके माइक्रो प्रोसेसर पहुंचने का काम कौन करेगा? बस। जैसे कि आपने देखा माउस में वायर होता है ना, तो वायर कहाँ पे कनेक्ट होता है? CPU को। फिर CPU उस इन्फॉर्मेशन को आपके माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बस, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। एड्रेस बस
द एड्रेस बस इज अ ग्रुप ऑफ 16 लाइन्स। अभी मैंने आपको पिन डायग्राम में दिखाया 16 लाइन्स के होते हैं, बराबर। जनरली आइडेंटिफाइड फ्रॉम A0 टू A15, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे A0 टू लेके A7 तक था, एंड राइट हैंड साइड पे लेके यहाँ पे लेफ्ट राइट, ठीक है, राइट साइड पे फिर क्या था, A8 से लेके A15 तक था, ठीक है। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, मतलब आपका एड्रेस बस जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, सिर्फ वो पॉइंट करने में हेल्प करेगा, बट वहाँ से एग्जैक्टली डेटा को अपने मेमोरी के अंदर लाने में हेल्प कौन करेगा, डेटा बस। एड्रेस बस लाएगा क्या कुछ, और सिर्फ पॉइंट करेगा कि आपका डेटा इधर है। सो इट इज, उसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल बस। सो इट इज कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल बस। बिट्स फ्लो इन वन डायरेक्शन फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट टू पेरिफेरल डिवाइसेस। मतलब बिट्स जो होता है ना यहाँ पे, ये बस में जो भी डेटा फ्लो होता है ना वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ऐसे उल्टा डेटा आता नहीं है, सिर्फ जाता है डेटा, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली आपका एड्रेस बस आपको मेमोरी लोकेशन में एड्रेस को पॉइंट करने में हेल्प करेगा। द MPU यूजेस एड्रेस बस टू आइडेंटिफाई अ पेरिफेरल और मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में कौन हेल्प करेगा, एड्रेस बस। हाँ चलो, मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई हो गया, अब उस मेमोरी लोकेशन के अंदर आ गया डेटा, अब उस डेटा को एग्जैक्टली माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाने में हेल्प कौन करेगा, डेटा बस। सो द डेटा बस इज अ ग्रुप ऑफ 8 लाइन्स यूज फॉर डेटा फ्लो। दीज लाइन्स आर बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है इट कैन रीड ऑल्सो एंड इट कैन राइट ऑल्सो, मतलब डेटा को वो माइक्रो प्रोसेसर से कोई पेरिफेरल तक लेके जा भी सकता है और कोई पेरिफेरल से माइक्रो प्रोसेसर में रिटर्न ला भी सकता है, ठीक है। सो इसलिए हम उसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल बस। डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। MPU माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट यूजेस डेटा बस फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। अगर आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना रहेगा, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा डेटा बस। हाँ, डेटा बस तो आप डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ करोगे, बट एग्जैक्टली आपका डेटा किधर है, ये पॉइंट करने में कौन हेल्प करेगा, ये पॉइंट करने में हेल्प करेगा आपका एड्रेस बस। और ये दोनों बस को कंट्रोल में रखने का काम कौन करेगा, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करेगा, बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे एग्जीक्यूट होने के लिए अलाउ करेगा, बाकी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे होल्ड पे। सो कंट्रोल बस कंट्रोल्स ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, व्हेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग टू कम, जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ आ जाएंगे तो अपना बस अपना माइक्रो प्रोसेसर किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, हैंग हो जाएगा। इसके लिए कंट्रोल बस क्या करेगा, उसके प्रायोरिटी के हिसाब से एक एक इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भेजा जाएगा। Control bus provides necessary timing and control signals to all the operations in the microprocessor. It controls the flow of data between microprocessor, memory and peripherals. Control signal in the bus are input output slash memory, read signal, write signal. ठीक है, सो कौन रीड होगा, कौन राइट होगा, किसका प्रोसेसिंग होगा, ये सब डिसाइड करेगा कौन, कंट्रोल बस। ठीक है, कंट्रोल बस सबको कंट्रोल बस बेसिकली डेटा बस और एड्रेस बस को कंट्रोल करेगा। एड्रेस बस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा और मेमोरी लोकेशन से एग्जैक्टली डेटा को मेमोरी में लाने में हेल्प कौन करेगा, आपका डेटा बस। So this is called as your bus, a very important topic. Many times this question has been asked in a board exam. So I want everyone to copy down this topic or notes in your notebook as it is. चलो, after discussing this point, now we can go to the next point. हाँ, अभी हमने कुछ यहाँ पे पिन के बारे में डिस्कस किया था ना। कैन यू सी ALE? सर आपको दिख रहा है ALE एड्रेस लैच इनेबल, यहाँ पे देखो ALE। ठीक है, ALE बेसिकली क्या होता है, जब आपको एड्रेस बस और डेटा बस को साथ में यूज़ करना है, याद है मैंने आपको बोला था, जब आपको ये एड्रेस बस और डेटा बस को साथ में यूज़ करना है। हाँ, अभी के लिए आप इसको एड्रेस बस को इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हो, एड्रेस बस डेटा बस को हम इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अपना ALE लो रहेगा, अपना ALE एड्रेस लैच एनेबल अगर लो रहेगा तो हम इसको इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका एड्रेस लैच एनेबल अगर हाई हो गया तो आप इसको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका ये एड्रेस बस डेटा पॉइंट करेगा, मतलब डेटा का मेमोरी लोकेशन पॉइंट करेगा, और ये डेटा बस एग्जैक्टली वहाँ से डेटा को लाने में हेल्प करेगा। सो साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, सो साथ में मिलकर काम करने के लिए कौन सा सिग्नल को हाई होना पड़ेगा, एड्रेस लैच एनेबल। सो एड्रेस लैच एनेबल इज अ पॉजिटिव गोइंग पल्स जनरेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक साइकिल मशीन स्टेट, एंड इट इज इंडिकेट्स दैट बिट्स ऑन AD7 टू AD0 आर एड्रेस बिट्स। एंड आपको AD7 से लेके AD0, AD7 मतलब एड्रेस बस डेटा बस 7 से लेके एड्रेस बस डेटा बस 0, इन सबको अगर साथ में यूज़ करना है तो आपको एड्रेस लैच एनेबल को हाई करना पड़ेगा। This signals enables lower 8 bit of the address from the multiplex bus to latch the external flip flop or peripheral devices. So यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है, आपने 11th पढ़ा है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप। सो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली लैच बनाता है। सो लैच बनाने के वजह से क्या हो जाएगा, एड्रेस बस और डेटा बस साथ में काम कर सकते हैं। एड्रेस बस और डेटा बस के बीच में जब लैच बन जाएगा तो दे कैन वर्क टुगेदर ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज ALE। उसके बाद रीड सिग्नल बहुत सिंपल है। अगर आपको आपके पेरिफेरल्स को यूज़ करके आपके मेमोरी लोकेशन के अंदर कुछ रीड करना है तो आपका रीड सिग्नल एक्टिव हो जाएगा। राइट सिग्नल, अगर आपको आपके मेमोरी लोकेशन से आपके पेरिफेरल्स में कुछ राइट करना है तो आपको राइट सिग्नल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, रीड सिग्नल, राइट सिग्नल आपने देखा रहेगा, रीड सिग्नल, ये देखो रीड सिग्नल,
राइट सिग्नल. सो रीड सिग्नल इज यूज टू रीड एनी कंटेंट. अच्छा ये कोई भी चीज़ के ऊपर आपको अगर बार दिखाई दिया तो समझ जाना माइक्रो प्रोसेसर में इट इज अ सिग्नल. ठीक है. सो रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, ठीक है, आपको मैंने बता दिया. ठीक है. लाइक इट इज दिस इज रीड कंट्रोल सिग्नल, दिस इज एक्टिव लो सिग्नल. This signal indicates that the selected input output or memory device is to be read and data is available on the data bus. So ये सिग्नल एक्टिव कब होगा, लाइक रीड सिग्नल एक्टिव कब होगा, जब आपका डेटा बस में डेटा आ गया रहेगा. डेटा बस में डेटा आने के बाद ये रीड करने में हेल्प करेगा. वैसे ही राइट का बस कब आपको हेल्प करेगा, जब डेटा बस के अंदर डेटा आएगा तो उसके बाद ये राइट सिग्नल आपके डेटा को मेमोरी के अंदर राइट करने में हेल्प करेगा. इट इज़ ट्राई स्टेटेड ड्यूरिंग होल्ड एंड हाल्ट. ट्राई स्टेटेड का मतलब क्या होता है, इस सिग्नल को हम लोग थर्ड स्टेट में भी लेके जा सकते हैं. एक तो रीड मतलब एक तो एड्रेस बस, ठीक है, एड्रेस बस वो पहला स्टेट. डेटा बस ओनली एड्रेस बस फर्स्ट स्टेट, ओनली डेटा बस सेकंड स्टेट, एड्रेस डेटा बस साथ में, दैट इज द थर्ड स्टेट. सो इट कैन बी ट्राई स्टेटेड, मतलब इसको थर्ड स्टेट में भी लेके जा सकते हैं बाय डूइंग द होल्ड एंड हाल्ट. होल्ड का मतलब होता है डेटा बस के यूज़ को दूसरे लोग ना करें, इसके लिए दूसरों को स्टॉप करना, उसको हम बोलते हैं होल्ड. हाल्ट का मतलब होता है होल्ड एक्नॉलेजमेंट. ठीक है. अगर किसी ब्लॉक के ऊपर अगर हमने होल्ड लगाया तो उसको बाद में निकालना भी पड़ेगा, सो निकालने के लिए हम करते हैं हाल्ट. ठीक है. सो रीड सिग्नल, राइट सिग्नल. आफ्टर दैट होल्ड बेसिकली क्या है, आपका जो डेटा बस है उसको लाइक एक इंस्ट्रक्शन एक टाइम पे यूज़ कर सकता है. आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, बट आपका जो डेटा बस है तो उसको डेटा बस बोलो या इंटरनल डेटा बस बोलो या इंटरनल बस बोलो, ऑल द बस कैन बी एक्सेस्ड ओनली लाइक बाय द वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम. बट अगर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करना चाहते हैं और उन्होंने समझो एक्सेस कर दिया बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस में, तो आपका पूरा काम खराब हो जाएगा, तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा. स्टॉप करने के लिए होल्ड सिग्नल होता है. सो अगर आपका कोई प्रोसेसिंग काम चल रहा है, आपका माइक्रो प्रोसेसर कोई प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, उतने में यूजर ने दूसरा कुछ डेटा दे दिया, ठीक है, तो उसको होल्ड किया जाएगा. होल्ड उसको रुकाया जाएगा. रुक, ऑलरेडी इधर एग्जीक्यूशन चल रहा है, तू मत आ जाने तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा. उसको होल्ड किया जाएगा मतलब उसको रुकाया जाएगा. ठीक है. और वो होल्ड को निकालने के लिए होल्ड एक्नॉलेजमेंट किया जाता है. ठीक है. जैसे वी हैव INTR इज अ इंटरप्ट. ठीक है. INTR इज इंटरप्ट. ये इंटरप्ट क्या होता है आपको आगे पढ़ना ही है डिटेल में. रीसेट इन मतलब आप एकदम स्टार्टिंग के मेमोरी लोकेशन से आ जाओगे फिर से 0000H. सो अगर आपको आपके माइक्रो प्रोसेसर को रीस्टार्ट करना है या रीसेट करना है तो आप तुरंत आपका जो मेमोरी पॉइंटर है, PC प्रोग्राम काउंटर जो है वो ये लोकेशन पे लोड हो जाएगा 0000H. तो आप फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो एग्जीक्यूशन. ठीक है. आफ्टर दिस यू हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्ट. ठीक है. अब भी से लेके और एक 10 मिनट और एक दो टॉपिक है. ठीक है. इंटरप्ट के ऊपर डिस्कस करना है, बस इंटरप्ट ही एक अपने डिस्कस करना है, फिर अपना ये वीडियो हो जाएगा खत्म. ठीक है. ओनली द लास्ट टॉपिक विच यू हैव टू डिस्कस इज बेस्ड ऑन इंटरप्ट्स. ठीक है. सो व्हाट इज इंटरप्ट, मैं आपको ऑलरेडी एक आइडिया दे दिया. इंटरप्ट इज द एक्सटर्नल सिग्नल. व्हाट इज इंटरप्ट? इंटरप्ट इज द एक्सटर्नल सिग्नल विच इज गोइंग टू डिस्टर्ब द वर्क ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. अभी इंटरप्ट हमेशा डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा. ठीक है. इंटरप्ट दो टाइप का होता है, एक होता है मास्केबल इंटरप्ट और एक होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट. इंटरप्ट बेसिकली क्या है, हर एक ये सब कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. एन इंटरप्ट इज अ सबरूटीन कॉल्ड इनिशिएटेड बाय एक्सटर्नल डिवाइस थ्रू हार्डवेयर कॉल्ड एज हार्डवेयर इंटरप्ट और माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. इंटरप्ट अगर कोई हार्डवेयर से आता है, देखो ना मैंने आपको क्या बोला, माइक्रो प्रोसेसर ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम के अंदर एंगेज होता है. उसको अगर कोई सिग्नल आके लाइक उसके काम को स्टॉप करेगा तो उस सिग्नल को अपन बोलेंगे इंटरप्ट. समझा? माइक्रो प्रोसेसर ऑलरेडी उसके काम में एंगेज होता है. जब आप कंप्यूटर को यूज भी नहीं करते हो ना, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द कंप्यूटर, स्टिल द माइक्रो प्रोसेसर इज इन यूज एट द बैक एंड. ठीक है. सो व्हेन यू गिव एनी सिग्नल और व्हेन एनी सिग्नल अराइजेस, अगर हार्डवेयर में से कोई सिग्नल आया तो उसको बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट. अगर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर से खुद से या कोई सॉफ्टवेयर के अंदर से खुद से कोई सिग्नल आया तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. सो इंटरप्ट बेसिकली क्या है, इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर के काम को खराब करेगा, बट माइक्रो प्रोसेसर उसको इंपॉर्टेंस देगा कि नहीं देगा वो भी मैटर करेगा. अगर समझो मैं एज अ यूजर मैंने कोई इंटरप्ट दिया तो माइक्रो प्रोसेसर क्या बोलेगा, रुक जरा, मेरे को बोले, यूजर को बोल सकता है क्या रुक जरा, नहीं, उसको मुझे इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा बिकॉज आई एम द यूजर ऑफ दैट कंप्यूटर. So microprocessor is going to leave its work. It is going to give the priority to me because I am the user. I have given the input. तो पहला प्रायोरिटी मेरा. So मेरा प्रायोरिटी होने का फिर उसका काम चलेगा. ठीक है. तो ये भी मैटर करता है कि प्रायोरिटी है कि नहीं, तो उसको अपन मास्केबल नॉन मास्केबल से डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है. Interrupt can also be viewed as a signal which suspends the normal sequence of microprocessor and then microprocessor gives service to that device which has been given signal. After completing the service, microprocessor again return to the main program. हाँ, माइक्रो प्रोसेसर उसका काम करेगा. अगर कोई सिग्नल आया तो माइक्रो प्रोसेसर उसका काम स्टॉप करेगा, वो सिग्नल को थोड़ा इंपॉर्टेंस देगा, वो सिग्नल का एग्जीक्यूशन होने के बाद देन माइक्रो प्रोसेसर इज अगेन गोइंग टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल वर्क. ठीक है. नेक्स्ट,
Microprocessor is connected to different peripherals. It communicate with these devices. Microprocessor 8085 uses interrupt method. आपके पास interrupt method यूज होता है so that microprocessor ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो. अभी इंटरप्ट बोलने के बाद दो टाइप के इंटरप्ट आते हैं, एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट और एक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. कोई इंटरप्ट अगर माउस कीबोर्ड की वजह से मतलब हार्डवेयर में से कोई इंटरप्ट जनरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट. अगर कोई इंटरप्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. राइट. अभी हार्डवेयर इंटरप्ट में भी दो टाइप के इंटरप्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट. ठीक है. सो मास्केबल इंटरप्ट क्या है, मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है, पहले हम नॉन मास्केबल इंटरप्ट के बारे में देख लेते हैं. ठीक है. नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या है? दीज इंटरप्ट्स कैन नॉट बी मास्क्ड और कैन नॉट मेड पेंडिंग. इंटरप्ट दो टाइप के हो सकते हैं, मास्केबल, नॉन मास्केबल. अगर कोई नॉन मास्केबल इंटरप्ट आया उसको हम पेंडिंग रख नहीं सकते. जैसे कि अगर समझो मैं यूज़र, मैंने अगर कोई कंप्यूटर का, आई कैन अंडरस्टैंड कंप्यूटर के बैकएंड में उसका काम चल रहा है, बट अगर मैंने कोई काम दिया कंप्यूटर को तो कंप्यूटर मेरे को इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए. तो मैंने जो इंटरप्ट किया कंप्यूटर को दैट इज नॉन मास्केबल. सो कंप्यूटर क्या करेगा, उसका काम छोड़ देगा, माइक्रो प्रोसेसर उसका काम छोड़ देगा, मेरे इंस्ट्रक्शंस को लेगा, उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा और एक आउटपुट जनरेट करके दे देगा. सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन मास्केबल इंटरप्ट. नॉन मास्केबल इंटरप्ट डिसेबल्स ऑल मास्केबल इंटरप्ट. ऐसा कोई सिनेरियो आ गया जहाँ पे 10 मास्केबल इंटरप्ट है और एक नॉन मास्केबल आ गया, तो एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट सारे 10 मास्केबल इंटरप्ट को डिसेबल कर सकता है. मास्केबल इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? जिसका प्रायोरिटी नहीं होता, बिल्कुल जिसको प्रायोरिटी लेस होता है, जिसका इंपॉर्टेंस कम होता है. जैसे कोई सॉफ्टवेयर में से अगर कोई इंटरप्ट आ गया तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यूज़र इंपॉर्टेंट है. तो यूज़र के प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. सो यूज़र जो भी इंटरप्ट देगा उसको हम बोलते हैं नॉन मास्केबल. तो इसके लिए नॉन मास्केबल इंटरप्ट सारे मास्केबल इंटरप्ट को कैंसिल भी कर सकता है. ठीक है. चलो, इट इज़ यूज्ड इन इमरजेंसी पर्पज लाइक पावर फेलियर, स्मोक डिटेक्टर, पैरिटी चेक एक्सेट्रा. सो जहाँ पे इमरजेंसी होता है वहाँ पे हम लोग नॉन मास्केबल इंटरप्ट के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, बिकॉज उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है. इट हैज़ हायर प्रायोरिटी देन मास्केबल इंटरप्ट. एग्रीड? येस, श्योर. सो आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो होता है उसको हम डिसेबल नहीं कर सकते. आपके माइक्रो प्रोसेसर को उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा, मतलब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा. इट इज़ ऑलवेज वेक्टर इंटरप्ट. व्हाट इज वेक्टर इंटरप्ट? ये आपको नेक्स्ट टाइम में पता चल जाएगा. रिस्पॉन्स टाइम फॉर नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज लो. अभी रेस्पॉन्स टाइम लो कैसे? क्या? बिकॉज अगर कोई नॉन मास्केबल इंटरप्ट आ गया तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. इंपॉर्टेंस देने के कारण उसको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट किया जाएगा. सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस इंटरप्ट टू रेस्पॉन्ड इज लो. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन मास्केबल इंटरप्ट. आई होप सो इंटरप्ट सबको समझ में आ गया. इंटरप्ट एक्सटर्नल सिग्नल, राइट, विच कॉजेज द माइक्रो प्रोसेसर लाइक to engage its task to some other task. There are two types of microprocessor, that is hardware interrupt and software interrupt. Hardware interrupt is again classified into two types, that is non-maskable and maskable. Non-maskable interrupt has highest priority, उनको importance बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, and maskable interrupt को priority कम दिया जाएगा. देखो, maskable interrupt, these interrupts can made masked or made pending. इनको अपन pending रख सकते हैं, ये इतने important है नहीं है. मास्केबल इंटरप्ट कैन नॉट डिसेबल एनी नॉन मास्केबल. हाँ, उल्टा नहीं हो सकता. हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला? नॉन मास्केबल इंटरप्ट सारे मास्केबल इंटरप्ट को डिसेबल कर सकता है. बट क्या मास्केबल इंटरप्ट नॉन मास्केबल इंटरप्ट को डिसेबल कर सकता है क्या? नहीं, बिकॉज इसका प्रायोरिटी बहुत कम है. इसका इंपॉर्टेंस अपने माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में बहुत कम है. इंपॉर्टेंस किसको ज़्यादा है? नॉन मास्केबल को. इट इज़ यूज टू इंटरफेस विद पेरिफेरल डिवाइसेस. यस, मतलब आपका मोस्टली मास्केबल पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. It has lower priority than non-maskable interrupts. It may be vectored or non-vectored. Response time for this interrupts is high. हाँ, इसको response time high लगेगा. ठीक है. So वही क्वेश्चन है, बस एक प्रॉपर फॉर्म में मैंने आपको लिख के दिया है. ठीक है. एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया था. सो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो, व्हाट आर वेक्टर्ड इंटरप्ट्स. ठीक है. हमने मास्केबल नॉन मास्केबल पढ़ा, बट वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे. वेक्टर इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन इंटरप्ट्स आर डायरेक्टेड टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन. सो जब आपका इंटरप्ट कोई पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में अपना कंट्रोल देगा तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट. ठीक है. इंटरप्ट समझो सबको. इंटरप्ट क्या है? जो माइक्रो प्रोसेसर के काम को स्टॉप करेगा, उसको हम बोलेंगे इंटरप्ट. दो टाइप के इंटरप्ट होते हैं, मास्केबल, नॉन मास्केबल. नॉन मास्केबल को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, ज़्यादा प्रायोरिटी नॉन मास्केबल को दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नॉन मास्केबल को दिया जाता है. मास्केबल इंटरप्ट को प्रायोरिटी कम दिया जाता है, एंड वन नॉन मास्केबल इंटरप्ट कैन कैंसल ऑल द मास्केबल इंटरप्ट्स, राइट. Then we come to the vector interrupt. Vector interrupt is an interrupt which are directed towards which are directed to transfer the control to a specific memory location. तो बेसिकली क्या आएगा? कोई इंटरप्ट आया तो उसका कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा? कोई पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में उसका कंट्रोल चला जाएगा. ठीक है. हाँ, ये इंटरप्ट आया तो इसका कंट्रोल ये मेमोरी लोकेशन में चला गया, तो इसको अपन बोलते हैं वेक्टर्ड एड्रेस.
So when the control of the interrupt goes to a particular memory location or a particular memory address, then that is called as vectored interrupt. ठीक है. हाँ, जैसे कि आप ये टेबल ड्रॉ करना है आपको, ट्रैप करके एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसका प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो जैसे नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ट्रैप इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड इसका वेक्टर एड्रेस क्या रहेगा 0024H. 0024H पे मोस्टली ये वाला इंटरप्ट मैनेज होता है. RST 7.5 इसका लोअर देन ट्रैप, ठीक है, इसका लो मतलब ये इंस्ट्रक्शन से थोड़ा कम है, सो 03H पे इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा. एंड INTR का सबसे कम प्रायोरिटी है, INTR लोवेस्ट प्रायोरिटी. सो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले इंटरप्ट को हम बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट. सो INTR इज अ मास्केबल इंटरप्ट एंड ट्रैप इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड इसका कंट्रोल ये मेमोरी लोकेशन पे जाता है. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज इंटरप्ट. एक फाइनल रिविजन इंटरप्ट के ऊपर फाइनल रिविजन. व्हाट इज इंटरप्ट? Interrupt are the external signal which stops the current work of the microprocessor or which may interrupt the microprocessor in the current data processing. माइक्रोप्रोसेसर का एग्जैक्ट जो काम चल रहा है उस काम को खराब करने के लिए कौन आता है? इंटरप्ट. इंटरप्ट के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट और एक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. द इंटरप्ट विच आर बीन जनरेटेड बाय द हार्डवेयर लाइक माउस कीबोर्ड एंड ऑल, देन दैट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर इंटरप्ट. द इंटरप्ट विच इज बीन जनरेटेड बाय द सॉफ्टवेयर लाइक गूगल क्रोम, व्हाट्सएप, इन पे से भी इंटरप्ट निकलता है, तो उसको अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. अभी हार्डवेयर इंटरप्ट में दो टाइप्स होते हैं, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल. ठीक है. मास्केबल इंटरप्ट जो होता है ना उसका प्रायोरिटी बहुत कम होता है. मास्केबल का प्रायोरिटी बहुत कम होता है. अगर माइक्रोप्रोसेसर उसका कोई काम कर रहा है और कोई मास्केबल इंटरप्ट आया तो उसको भाव भी नहीं दिया जाएगा, उसको होल्ड पे रखा जाएगा. क्या रखा जाएगा? होल्ड पे रखा जाएगा, बिकॉज उसका प्रायोरिटी कम है, उसका इंपॉर्टेंस कम है. बट अगर कोई नॉन मास्केबल इंटरप्ट आया, उसी वक्त कोई नॉन मास्केबल इंटरप्ट आया तो वो मास्केबल को कैंसिल भी कर सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को या आपके माइक्रोप्रोसेसर को नॉन मास्केबल के ऊपर वर्कआउट करना ही पड़ेगा, बिकॉज नॉन मास्केबल ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो नॉन मास्केबल से आते हैं वो मोस्टली यूजर की तरफ से आते हैं, तो यूजर जो बोलेगा वो कंप्यूटर को सुनना पड़ेगा ना. वो उसका काम बाद में भी कर सकता है, बट यूजर का काम पहले, उसका प्रायोरिटी पहले, यूजर का प्रायोरिटी पहले. सो यूजर जो भी इंटरप्ट देगा दैट विल बी द नॉन मास्केबल इंटरप्ट. ठीक है. चलो, एंड लास्ट इज वेक्टर इंटरप्ट. वेक्टर इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन द इंटरप्ट आर डायरेक्टेड टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन. सो जब अपना कंट्रोल कोई पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाता है तो उस इंटरप्ट को हम बोलते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट. ठीक है. सो ये सब आपको लिखना होता है. ये लिखने के बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है, चार्ट ड्रॉ करना होता है. ठीक है. एंड वेक्टर इंटरप्ट एंड इंटरप्ट का टॉपिक खत्म. हियर वी हैव कंप्लीटेड द 50% ऑफ द चैप्टर. हमने 50% अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया पार्ट 1 में. सून द नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन पार्ट 2. पार्ट 2 में हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 को डिस्कस करने वाले एंड हम लोग ये अपना फ्लैग स्टेटस, फ्लैग्स के बारे में डिस्कस करने वाले. ठीक है. सो पार्ट 2 डिस्कस करने से पहले पार्ट 1 का वीडियो पूरा आपको अच्छे से लिख लेना है नोटबुक में. इफ़ यू वांट द डिटेल्ड नोट्स गो टू द डिस्क्रिप्शन. अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको एकदम डिटेल नोट्स, अभी हमने जो भी डिस्कस किया पूरा चैप्टर का एकदम डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. सो पार्ट 1 कंप्लीटेड. अच्छे से रिवाइज करते रहो. रिवीजन इज गोइंग टू प्ले वेरी क्रूशियल रोल माय डियर फ्रेंड्स. कल के कल आपको पार्ट 2 का वीडियो भेज दूंगा मैं, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि रिवीजन जितना करोगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपके CS में आएंगे. मैं जो PDF आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ उस PDF के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाओ. आउट ऑफ मार्क्स आप लेके आओगे, आउट ऑफ मार्क्स आप लेके आ सकते हो. ठीक है. चलो, बाय. विल मीट इन द पार्ट 2.